So now as we proceed to our next segment, and then we have lunch right after that, so just keep your energy there, just half hour more. So I'm gonna keep these chairs here, and the reason now that we studied about the 5 chairs, but now I have a few people with me, and I'm not going to tell again about their introductions, that's their part. But these are some inspirational stories that we must learn from, that how they have came and risen from their life despite every challenge and every struggle. And they became the version of themselves that they are today. So I would like to invite one by one, and I would please request all of them to come forward. So the first person is Mehnaz Majid. She's a public programs manager. Please welcome her on stage. Next, I would like to invite a female food panda rider, Ruxana Mehek. A rider being a female, imagine. Please. And next, and I want you all to give a huge round of applause for Mujahid Baloch, who's from Artistic Millionaires, and he has such a beautiful story, so please motivate all of these amazing people. Please have a seat. And now, for our last panelist, I want to invite someone who has such a beautiful story and is even more beautiful soul-wise. Zarina Baloch, who's right in front of me, please, can you help? We definitely should have ramps everywhere, so please applaud her. And let's keep clapping until she comes on stage. That's like it. Thank you so much for each one of you for joining. And before going into anything, I'm just going to ask you 2 simple questions, and we'll go one by one, and we would love the audience to hear. That what motivated you to become the version of yourselves that you are today? ऐसा क्या था कि आपने ये सब चीज़ें छोड़ दी कि लोग क्या कहेंगे, घर वालों को क्या समझाएंगे, हम अपने बारे में क्या सोचेंगे, लेकिन आप लोगों ने उन सब चीज़ों को साइड पे किया, एंड आप लोग जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो किसी वजह से आप लोग वहाँ नहीं, यहाँ पे हैं. So please a round of applause. And I would really want कि आप लोग ऑडियंस से ये भी शेयर करें कि what were the challenges. कोई ना कोई मुश्किलात तो ज़रूर आई होगी, तो उनको आपने कैसे ओवरकम किया, because that is the motivation we all will walk away from today, right? So let's start with our very first, Mehnaz Majid. Please. अस्सलाम वालेकुम. आप सब मुझसे सुन सकते हैं? A mic a little above. Perfect. Okay. Assalamu alaikum everyone. Thank you so much Bisma for calling us. मेरी कहानी इंटरेस्टिंग इसलिए है, यहाँ से स्टार्ट होती है कि ज़्यादातर आपसे स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ पे जितने स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, उनकी जर्नी में या उनकी स्टडी के पार्ट में ये एक चैलेंज रहता होगा कि उनको एग्ज़ाम्स की टेंशन होती होगी कि एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, पढ़ाई करनी है, और उस चीज़ की टेंशन ज़्यादा रहती होगी. बट मेरे सिनेरियो में ये होता था कि मैं एग्ज़ाम्स दे पाऊँगी या नहीं दे पाऊँगी, मुझे ये टेंशन होती थी कि मुझे एग्ज़ाम्स दिए जाने देंगे या नहीं. तो मेरी जर्नी यहाँ से स्टार्ट होती है. मैं एक ऐसी कम्युनिटी में पैदा हुई जहाँ पे कोई स्कोप नहीं था कि लड़की को भी पढ़ा सकते हैं या उनको भी एजुकेशन दे सकते हैं. माय फादर वाज पंजाब स्कूल ऑफ थॉट, और उनका भी यही था, ज़ाहिर है, जहाँ उनकी अपब्रिंगिंग हुई, उनकी यही थिंकिंग कि लड़कियों को कोई ऐसा सच नहीं होता कि एजुकेशन दी जाए. बट मेरी अम्मी का ड्रीम था कि उनके जो बच्चे हों वो पढ़े लिखे हों, तो उन्होंने एक स्टेप उठाया और उन्होंने एक थोड़ी सी स्ट्रेटजी खेली. बिकॉज़ मेरे अब्बू चाहते थे कि मैं कुरान हाफ़िज़ बनूं और कुरान की तालीमात लूं, और स्कूल में ऐसा कुछ नहीं होता कि लड़कियों को हम स्कूल डालें, ये बहुत बुरी बात होती है, मतलब इतनी हद तक इस तरह की सोच थी वहाँ पे. तो अम्मी ने थोड़ी सी स्ट्रेटजी ये खेली कि अगर हम इसको स्कूल में एडमिशन करवाएंगे तो ये जल्दी से सबक पढ़ना शुरू कर देगी, कुरान जल्दी ख़त्म हो जाएगा अगर ये अलिफ बे पे स्कूल में पढ़ना शुरू कर देगी. तो अब्बू ने कहा चलें ठीक है, ये तो बेस्ट हो गया, अगर इस तरह से स्कूल में एडमिशन करवाने से ये जल्दी मदरसा पढ़ लेंगी
तो फिर हम एडमिशन करा देते हैं। तो इस स्ट्रेटजी से जो है वो मेरी स्कूलिंग स्टार्ट हुई और मेरी स्टडी स्टार्ट हुई। और इसी तरह से करते करते ये स्ट्रगल शुरू हुई स्टडी की, जिसमें मुझे हर टाइम यही लगता था कि अब मेरी पढ़ाई ख़त्म हो जाएगी या अब मुझे मेरा स्कूल बंद हो जाएगा या स्टडी बंद हो जाएगी। इसी तरह से करते हुए मैं आगे आई, कॉलेज में एडमिशन हुआ। तो वहाँ पे भी यही मेरे पास सिर्फ यही एक डर होता था हमेशा, यही एक चैलेंज होता था मेरे लिए। मुझे कोई एग्ज़ाम्स की टेंशन नहीं होती थी कि मैं एग्ज़ाम्स कैसे अच्छे दे पाऊँगी या नहीं या बुरे। मुझे बस सिर्फ एक ही टेंशन होती थी कि बस अभी कोई चीज़ आ जाएगी और मुझे एग्ज़ाम नहीं देने दिए जाएंगे और मेरी पढ़ाई बंद हो जाएगी, जो कि मेरा एक बहुत बड़ा ड्रीम था, पढ़ना और आगे बढ़ना। मोटिवेट मुझे क्या करता था इस चीज़ को लेकर, मोटिवेट मुझे ये चीज़ करती थी कि मुझे जो कुछ करना है अपनी लाइफ में ख़ुद करना है, किसी पे डिपेंड नहीं होना। मुझे जो चीज़ें अचीव करनी है, चाहे वो एक पेंसिल है, चाहे वो एक बड़ी गाड़ी है, मुझे हर चीज़ ख़ुद से अचीव करनी है अपनी मेहनत से। अब ये किस तरह से मेरे अंदर आई, ये शायद नेचुरल है या शायद अम्मी की तरफ से आया, बिकॉज मेरी अम्मी भी एक बहुत इंडिपेंडेंट और उस तरह की खातून थी। सो मोटिवेट मुझे यही करता था कि मैंने ख़ुद से ही कुछ करना है। और बीइंग अ एल्डर सिबलिंग, अपने घर में सबसे पहली मैं ही हूँ और मेरे बाद मेरे 2 भाई हैं, और इकलौती बेटी होने के बावजूद मैं बिल्कुल भी अपने आप को पैम्पर नहीं करती थी कि मैं ये नहीं कर सकती या मैं वो नहीं कर सकती। और जो स्ट्रगल होती थी, जो चैलेंजेस होते थे, मैं उसको फेस करती थी। तकलीफ़ें बहुत होती थी, रोना भी बहुत आता था, और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती थी, कभी कभी डीमोटिवेट भी हो जाते थे, लेकिन फिर दोबारा से खड़े करते थे क्योंकि अपने ड्रीम्स को आगे रखा हुआ था, अपने गोल्स को आगे रखा हुआ था कि पढ़ना है। और उस कम्युनिटी में ये प्रूव करना है कि लड़कियों की एजुकेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है, और पढ़ने से जो है वो लड़कियां ख़राब नहीं होती। एक ये थॉट भी था कि लड़कियां जो हैं अगर हम उनको स्कूल कॉलेजेस भेजेंगे तो लड़कियां ख़राब हो जाती हैं या वो किसी गलत रास्ते पे चली जाएंगी। और और ये वाला एक चैलेंज भी था मेरी लाइफ में कि जैसे मेरे फादर को आहिस्ता आहिस्ता मेरी अम्मी उनकी जो थॉट्स हैं वो चेंज करती रहीं, तो फिर आसपास के कम्युनिटी के दूसरे लोग आ जाते थे, वो दोबारा से कुछ कह देते थे, अब्बू का फिर माइंड डाइवर्ट हो जाता था कि नहीं ये कुछ गलत ना हो जाए और ये बाहर कॉलेज जा रही है पढ़ने, कुछ गलत ना हो जाए। तो वो फिर दोबारा से मेरे लिए एक सारी चीज़ें आ जाती थी और फिर अम्मी को दोबारा से सब क्लियर करना पड़ता था। तो इसी तरह से करते करते मैं अपनी ख़ानदान की पहली एक लड़की हूँ जो कि यूनिवर्सिटी तक पहुँची, और अब मैं यूनिवर्सिटी में मास्टर्स कर रही हूँ। तो अब लाइक मेरे फादर को जो भी मिलते हैं वो सब ये बोलते भी हैं। Please, a round of applause for her. And let's give her one moment, but I would like to mention one thing, कि जो अम्मी की बात कर रही है ना, that proud, that courageous, resilient woman, she's sitting right here among us, so please let's have a huge round of applause for us. सो ऐसी कुछ बच्चियां हैं जिनको नहीं पढ़ाया लिखाया गया और उनकी पढ़ाई पे पाबंदी लगाई गई, तो वो गलत रास्ते पे गई हैं। तो जो मेरे फादर को कहते थे इस तरह से कि ये गलत, देखो तुम पढ़ा रहे हो, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो तुम, मतलब बिरादरी से एक अलग वो जा रहे थे। और वो बहुत, उन्होंने भी बीइंग अ फादर बहुत फ़ाइट की, बहुत बातें सुनी, बहुत लोगों की बातें सुना करते थे बेटी के बाप होकर, और इस तरह से सारी चीज़ें। और एक बहुत बुरी और गंदी बात समझी जाती थी कि ये बाहर बेटी को पढ़ाने के लिए लेके जा रहा है, ख़ुद उठा के जाता है कॉलेज, और शर्म नहीं आती, और इस तरह की चीज़ें उनको भी बर्दाश्त करनी पड़ती थी। बट नाउ पूरे ख़ानदान में वो बहुत प्राउडली भी कह सकते हैं, और उनको कोई नहीं कह सकता कि आपने बेटी को पढ़ाया है, बट बेटी ही आपकी जो है वो आज एक बहुत अच्छी जगह पे है और मैनेजर है। और इसकी एक इंटरेस्टिंग चीज़ मेरे लिए ये है कि मेरे मदर फादर दोनों पढ़े लिखे नहीं थे, और मेरे फादर जो हैं वो एक माली का काम करते हैं। तो वो भी मेरे लिए एक बहुत प्राउड मोमेंट होता है कि लड़की होकर और एक माली की बेटी होकर मैं आज लाइक इस मकाम तक पहुंची हूँ। तो वो पेरेंट्स की वजह से ही है, उन्होंने भी बहुत कुछ फेस किया मेरी वजह से, बहुत लोगों की बातें सुनी,
और बस ये मेरी स्ट्रगल थी। बस मैं यही कहूँगी कि हम सब की स्ट्रगल होती है, हम सब लड़कियों की स्ट्रगल होती है बहुत ज़्यादा, किसी ने कहीं किसी की कुछ और किसी की कुछ। बस लड़कियों को थोड़ा सा प्रूफ करना पड़ता है हमें कि हम कुछ कर सकते हैं या हम कुछ करना चाहते हैं। ये थोड़ा सा एक है हमारी सोसाइटी में कि हमें प्रूफ करना पड़ता है, तो हमें कुछ मिल सकता है। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Mehnaz. And now I would like to request to play the video from Artistic Millionaires. Yes. And let's have a short glimpse of this, and then let's hear from Mujahid himself. Artistic Millionaire believes in diversity and inclusion. We live it every single day. It is our core value. Mr. Mujahid and many like Mr. Mujahid are the living example of diversity in the organization. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुजाहिद है। मैं आर्टिस्टिक मिलियनेयर्स में काफ़ी अरसे से एज अ क्वालिटी चेकर काम कर रहा हूँ। मुजाहिद काफ़ी अरसे से हमारी टीम का हिस्सा हैं और इनके काम करने की जो लगन है वो काफ़ी मुतासरकुन है। दूसरा, वो अपनी मेहनत से आर्टिस्टिक मिलियनेयर की सक्सेस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और इनके काम करने की जो सलाहियत है वो दूसरे लोगों से बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं है। मेरा मानना है मेरा ताल्लुक किसी भी जेंडर से हो, मैं मेहनत कर सकता हूँ और आगे बढ़ सकता हूँ। आर्टिस्टिक मिलियनेयर्स का मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा किरदार है। उन्होंने मुझे शामिल करके मेरी कम्युनिटी के लिए रास्ते खोल दिए। मैंने ये नहीं सोचा मैं क्या नहीं कर सकता हूँ, मैंने ये सोचा मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने मैट्रिक किया, मैंने फैशन डिज़ाइनिंग के कोर्स की, मैंने इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ा। Being a CSR representative, जो जैसे कि मैं जेंडर डाइवर्सिटी पे भी काम कर रही हूँ, तो मुजाहिद की स्टोरी जो है वो हमारे लिए बड़े ही इम्पैक्टफुल है। इन अ सेंस कि जैसे कि ये लोग भी हमारी सोसाइटी का हिस्सा हैं और हम इनको निगलेक्ट नहीं कर सकते, तो हमें इन्हें इक्वल जो है वो चांस देना चाहिए, इन्हें भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए जो कि इनका राइट है, क्योंकि ये लोग किसी से कम नहीं हैं। मैं अपने भाई बहनों में वाहिद कमाने वाला हूँ। रिजेक्शन से बहुत तकलीफ़ होती है। मेरे अम्मी अब्बू ने मेरा बहुत साथ दिया और वो आज मुझ पर बहुत फ़ख्र करते हैं। मुजाहिद और मैं कोवर्कर्स हैं, हमारी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है। मुझे अपने दोस्तों और मुजाहिद में कोई फ़र्क नज़र नहीं आया। मैं Can you hear me? That was without the mic, by the way. So the video stopped, and that's fine because these issues occur all the time. So now, coming on to Mujahid, just one very simple question. आप कोई ऐसा मैसेज सबको देना चाहेंगे, पूरी सोसाइटी को, कंपनीज को? बस आप अपनी दिल की बात करें, बिकॉज दिस इज़ योर टाइम टू नाउ स्पीक अप। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम मुजाहिद है। मैं पिछले 8 साल से आर्टिस्टिक मिलियनेयर्स में एज अ क्वालिटी चेकर काम कर रहा हूँ। शुरू में यहाँ पे आया था, मुझे कोई काम नहीं आता था। यहाँ पे आके मैंने काम सीखा और अपने आप को प्रमोट करने के लिए आगे बढ़ा। और शुरू में जो मेरे साथ लोग काम करते थे वो बहुत घबराए हुए थे, और वक्त गुज़रा, वक्त के साथ साथ मैंने अपना काम दिखाया और उन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, मैंने उनको सपोर्ट किया। अब वो सारे लोग मेरे फ्रेंड्स बन गए और आज मैं क्वालिटी चेकर हूँ। What you seek is seeking you। जिस चीज़ को हम तलाश करते हैं वही चीज़ हमें तलाश करती है और हम आपस में कनेक्ट होते हैं। मेरी ज़िंदगी में 2 हीरोज़ हैं, एक मेरी अम्मी जिन्होंने पहली ईंट रखी और दूसरा आर्टिस्टिक मिलियनेयर्स जिन्होंने मुझे शामिल करके मेरे जैसे लोगों के लिए रास्ते खोल दिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप भी आर्टिस्टिक मिलियनेयर्स की तरह हमारे जैसे लोगों को मेरिट पे हायर करें। शुक्रिया फॉर एवरीवन listening to my voice and my public message. Thank you so much, Artistic Millionaires. Beautiful. And I think this is a message जो उन्होंने शायद 1 मिनट में बोला है, but it has given such a deep meaning, and I hope we all will implement this when we act in the society. Will we? Yes. I want to hear it louder. Will we? Yes.
Thank you so much, Mujahid. Now, coming on to a female food panda rider who leaves the house at night, does the duty the entire night, whilst having kids, having families like all of you, and then returns in the early morning. So let's hear it from her, and let's have some motivation from her. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरफ से सबको सलाम। मैं फूड पांडा राइडर हूँ। मैं 12 घंटे काम करती हूँ। Wow. मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, इसलिए मुझे ज़्यादा बोलने का वो नहीं है तरीका। आप यहाँ आई हैं, वही हमारे लिए काफ़ी है। You just speak your heart out. थैंक यू। मेरा ताल्लुक़ बलोच फैमिली से है, जहाँ पे बच्चियों को पढ़ने की इजाज़त नहीं होती। कम वो जितना भी पढ़ती है, मतलब 6, 5, 8 मैट्रिक जितना भी करती हैं, वो सिर्फ उनकी अम्मियाँ उनको छुप छुप के पढ़ाती हैं। सो मैंने भी मैट्रिक किया है, इससे ज़्यादा मेरी तालीम नहीं है। जब मैं फ़र्स्ट टाइम फूड पांडा में गई ज्वाइन करने के लिए, तो मैं बहुत घबराई हुई थी कि ये मुझे बोलेंगे आप कितना पढ़ी लिखी हैं, हो सकता है ये ज़्यादा तालीम मांगे, तो बहुत डरी हुई थी जब मैं गई। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, फूड पांडा एक बहुत अच्छी कंपनी है। वो फ़ीमेल जो है ना, लेडीज़ के लिए आसानियाँ उन्होंने बनाई हुई हैं। उन्होंने मुझे बस यही पूछा कि आपको बाइक चलाना आती है? मैंने बोला जी मैम बिल्कुल आती है बाइक चलाना। उन्होंने मुझे जॉब दे दी, और मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ। आज मैं जो कुछ भी हूँ, सिर्फ अपनी कंपनी फूड पांडा की वजह से हूँ। रुखसाना, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी कि इतनी सारी यहाँ पे वी हैव ब्यूटीफुल लेडीज सिटिंग हियर, आर यू ऑल ब्यूटीफुल? आई थिंक जब अपनी तारीफ कर रहे होते हैं तो और ज़ोर से आनी चाहिए। आर यू ऑल ब्यूटीफुल? ओके, नाउ आई नो बिकॉज यू डेफिनेटली आर, बाय द वे। सो नाउ एक आप ये मैसेज बताएं कि बहुत सारे ऐसे प्रोफेशंस होते हैं कि जिसमें हम लोगों को लग रहा होता है कि ये तो लड़का ही करेगा और ये तो लड़की ही करेगी। कितनी ऐसी चीज़ें कि हमने एक बैरियर बनाया हुआ है। सो पीपल लाइक हर हैव कम इन बिटवीन एंड ब्रोकन दोज बैरियर। सो फर्स्ट अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ब्रेकिंग द बैरियर। एंड कोई एक ऐसा मैसेज आप जाते जाते सारी यहाँ लड़कियों को देना चाहें अबाउट नेवर गिविंग अप ऑन योर ड्रीम्स एंड मूविंग अहेड, प्लीज़ जस्ट वन लाइन। जितनी भी मेरी बहनें बैठी हैं, मैं सबको ये मैसेज देना चाहूँगी कि कोई भी काम मुश्किल नहीं है। अगर आप सोचती हैं कि हम ये नहीं कर सकती, तो ये बिल्कुल गलत सोच है आपकी। आप कर सकती हैं, आप बाहर निकलें, आप पढ़ें। जो पढ़ रही हैं वो तो खुश नसीब है, मैं समझती हूँ, जो पढ़ी लिखी हैं। मेरी नज़र में वो खुश नसीब है। अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, पढ़ें, मेहनत करें, दिल लगा के पढ़ें और आगे बढ़ें। पाकिस्तान का मुस्तकबिल है आप लोग। हम तो ज़्यादा नहीं पढ़ पाए, लेकिन हम फ़ख्र करते हैं पढ़े लिखे लोगों पे। Thank you so much. And now hearing it from our final panelist, Zarina Baloch. She has such a beautiful story, such an inspiring story, and I wouldn't want to ruin it before she speaks. So please, Zarina, the mic is all yours. Thank you so much, Bisma. Bismillahirrahmanirrahim. I start with the name of Allah, who is the most merciful, beneficial, who created you and me and all universal. मेरा नाम ज़रीना बलोच है। मैं हैदराबाद से आई हूँ। अभी हैदराबाद ILC सेंटर से आई हूँ। मैं मास्टर्स की स्टूडेंट हूँ। जैसे कि ये मेरी जो डिसेबिलिटी है, ये 3 साल पहले डायग्नोस्ड हुई थी, मायोपैथी जिसका नाम है। ये लाखों की तादाद में किसी एक बंदे पे अटैक करती है, यंग एज में करती है। तो पहले मैं आप सब लोगों की तरह एक नॉर्मल लाइफ ज़िंदगी गुजार रही थी, नॉर्मली चलती थी, यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी मैं। सडनली मैंने कुछ टाइम के बाद फील किया कि मेरे चलने में थोड़ा मतलब मसला हो रहा है। आस्ते आस्ते चल रही हूँ, जब चलती हूँ तो थक जाती हूँ। मैंने सोचा शायद ये कोई वीकनेस वगैरह होगी, इस वजह से हो रहा है। फिर कुछ टाइम के मैंने उसको इग्नोर किया, मेडिसिन ली, कुछ बेहतर हुआ। कुछ दिन के बाद फिर मैं फ़ील किया कि मैं कुछ टाइम चलती हूँ तो मेरे चलने में कुछ लचक आ गई है। उसके बाद मैंने डॉक्टर से रब्ता किया। जब डॉक्टर ने मुझे कुछ टेस्टें दी लिख के, तो मैंने वो टेस्टिंग कराई। जब मैंने वो टेस्टिंग कराई और कुछ दिन के वेट किया कि जब टेस्ट आ जाए। जब टेस्ट की रिपोर्ट आई तो मेरे हाथ बिल्कुल कँप आ रहे थे। मैंने जब उसमें अपनी एक डायग्नोस देखी
कि मायोपैथी स्पाइनल कॉर्ड से कुछ वेनें जो आपके पाँव की तरफ जाती हैं वो उनमें ब्लड सप्लाई नीचे पाँव की तरफ वो ब्लड सप्लाई नहीं करता है। मुझे वो डिज़ीज़ हुई थी जिसमें आहिस्ता आहिस्ता आपके चलने का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस चेंज हो जाती है। मैंने सोचा ठीक है इसकी कोई ट्रीटमेंट वगैरह होगी और मैं पहले जैसी ठीक हो जाऊंगी और पहले की तरह नॉर्मल ज़िंदगी गुजारूंगी। ये सिलसिला चलता रहा। मैं एक बलोच कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ, रूरल एरिया इंट्री सिंध से हूँ। जैसे कि आप सब लोगों को पता भी होगा, वरना मैं बता देती हूँ कि ज़्यादातर बलोच कम्युनिटी के जो लोग होते हैं, कबीलाई लोग होते हैं, वो ज़्यादातर अपनी फ़ीमेल्स जो होती हैं उनको ज़्यादा बाहर नहीं निकालते। लेकिन मेरे वालिदैन खुद पढ़े लिखे थे, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे तालीम दी और वो चाहते थे कि मैं आगे भी तालीम हासिल करूँ। और मेरे बाबा एक मज़दूर हैं, वो मज़दूरी करते हैं, जो डेली रूटीन वो कमा के लाते थे, सिर्फ उसी से हम खाना वगैरह बना के खाते थे। यही हमारी ज़िंदगी थी सिंपल। और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। ये सिलसिला चलता रहा था और मैंने ट्रीटमेंट वगैरह स्टार्ट की, लेकिन मैंने देखा कि ये मुझे तकलीफ़ दिन ब दिन ज़्यादा होती जा रही है। मैं लारिकाना सिटी से बिलोंग करती थी और फिर मुझे ट्रीटमेंट के लिए हैदराबाद कराची डाउ यूनिवर्सिटी आना पड़ता था। फिर वहाँ पे डॉक्टर जवादुस्सलाम को मैं अपनी तरह चेकअप वगैरह कराती थी और ये भी मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि मैंने फ़ील किया था कि अगर मैं कोच या वैन में बैठती हूँ तो मुझे बैठने में मसला हो रहा है, क्योंकि स्टेप वाली कोई भी चीज़ थी वो मैं क्रॉस नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से मेरे वालिदैन भी ज़्यादा परेशान होने। फिर इन्हीं हॉस्पिटल और घर के लारिकाना से कराची से लारिकाना 7-8 घंटे का सफ़र था। ये सिलसिला चलता रहा। जो जितनी जमा पूंजी थी उसके अलावा हमारे पास एक घर था। फिर मेरे वालिदैन ने कहा कि आपके लिए ये घर भी हम सेल कर देंगे, कोई मसला नहीं, बस आप पहले की तरह ठीक होके चलने लगे। फिर मेरे वालिदैन ने वो अपना जो हमारा ज़ाती घर था वो हमने सेल किया कि शायद मैं पहले जैसी हो जाऊं, क्योंकि मेरे दूसरे छोटे बहन भाई थे। मेरे वालिदैन का जो कुछ थी मैं ही थी, मुझे ये कामयाब बनना था, तो उनके सपने मुझसे वाबस्ता थे। मेरा स्ट्रगल कंटिन्यू चला। जब मैं घर से घर जाती थी तो हम ऐसे मुआशरे में रहते हैं ना, लोग आप कुछ भी कर लें वो कमेंट्स पास ज़रूर करते हैं। तो कुछ लोग बोलते थे इसके वालिदैन ने ऐसे कोई गुनाह किए होंगे, कुछ लोग बोलते थे ये खुद यूनिवर्सिटी जाती है, इसने कोई ऐसा गुनाह किया होगा। मतलब अलग अलग लोगों का अलग अलग उनकी थिंकिंग होती थी। मतलब मैंने नोट किया कि जब भी मैं जाती हूँ सब लोगों का सब्जेक्ट मैं ही होती हूँ। फिर लोग आते थे, स्पेशली मुझे देखने के लिए आते थे, लेकिन जब वो आते थे ना तो मैं मतलब बैठी ही रहती थी, मैं चलती भी नहीं थी। मैं सोचती थी कि मैं जाऊंगी ये मुझे ऐसे ही चलते हुए देखेंगे, फिर जाके गांव में सबको बताएंगे कि ये ऐसा चलती है ऐसा चलती है। मैं वेट करती थी वो गेस्ट उठ के जाएँ फिर मैं दूसरे रूम में जाऊँ। लेकिन मैंने देखा कि मैं इन सब चीज़ों में मैं खुद अजियत का शिकार थी। मेरे वालिदैन ने सोचा, फिर मेरे वालिदैन ने कहा कि आप अगर यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं है, हम ये वैसे भी हमने घर तो सेल कर दिया है, हम किसी और जगह चलते हैं। फिर हमने डिसाइड किया कि हम हैदराबाद चलते हैं, वहाँ पे आगे ज़िंदगी का शायद हमारे वहाँ पे मुंतज़िर हो, वहाँ पे आला तालीम भी हासिल करते हैं और कुछ हालात भी बेहतर हो जाएंगे, वहीं पे काम वगैरह भी देखेंगे। तो हम वहाँ से हैदराबाद शिफ्ट हो गए। हैदराबाद में हमने एक रेंट का घर लिया। फिर मेरी ट्रीटमेंट वगैरह जो थी, लेकिन उसके अलावा मैंने मेडिकल लम्स यूनिवर्सिटी जामशोरा में मेरी सिलेक्शन हुई थी और मैंने सोचा कि मैं इसी के डिसेबिलिटी के साथ अपनी वो वाली स्टडी भी कंप्लीट करूं। लेकिन मैंने नोट किया कि वहाँ के लोग क्योंकि माशरा आपको फिज़िकली एक्सेप्ट करता है, मेंटली नहीं करता। फिज़िकली अगर आप ब्लाइंड हैं तो कोई आपको रास्ता क्रॉस करा देगा, अगर आप व्हीलचेयर यूज़र हैं तो लोग आपकी व्हीलचेयर को थोड़ा पार्क बैरियर है आगे, कोई रुकावट है तो वो आगे कर देंगे, लेकिन वो मेंटली एक्सेप्ट नहीं करते, जिसकी वजह से जो भी माजूर अफराद हैं वो हमेशा की तरह साइड पे ही होते हैं। ज़्यादातर लोग उनको प्रोग्राम्स में भी इसलिए नहीं बुलाते हैं कि इनका क्या काम है, लेकिन कुछ लोग बहुत अच्छे भी होते हैं, वो उनकी शमूलियत करते हैं हर प्रोग्राम में। ये सिलसिला चलता रहा और इन सब में जब मेरी स्टडी मास्टर्स की कंप्लीट हुई और उसके अलावा मेडिकल की स्टडी भी मेरी 4 साल का डिप्लोमा था वो कंप्लीट हुआ लम्स यूनिवर्सिटी से, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना जॉब करूं। और क्योंकि मैं ट्रीटमेंट वगैरह जो कराती थी उसके लिए मेरे पैसे नहीं थे और मेरे बाबा मज़दूर थे कि रेंट का घर था, तो हमें बहुत मुश्किलातें पेश आ रही थी। लेकिन मैंने देखा
लेकिन मैंने देखा कि मतलब जब भी मैं जॉब के लिए कहीं पे जाती हूँ तो लोग तो इंटरव्यू में पास हो जाती थी लोग, लेकिन मेरे फिज़िकल अपीयरेंस देख के ना मुझे कहते थे आप मैडम पास तो हो गई, अब आप बताएं हम आपको कैसे जॉब दें, आप जाके ना आराम करें। मैंने कहा वैसे मरने के बाद आराम ही तो करना है, अब आई हूँ ज़िंदगी में तो कुछ करके जाऊँ, ठीक है। लेकिन ये था कि बहुत सारी जब मैंने इंटरव्यूज़ दिए थे, पास भी हुई थी, लेकिन ये इस डिसेबिलिटी की वजह से मुझे किसी ने जॉब वगैरह नहीं दी, ना मेडिकल की डिग्री पे दी ना मास्टर्स की डिग्री पे दी, जिसकी वजह से मैं नाउम्मीद होके एक घर पे बैठ गई, क्योंकि मैं शॉप वगैरह में भी अपने लिए कुछ लेने नहीं जा सकती थी, क्योंकि वहाँ पे कोई भी स्टेप वाली चीज़ होती थी तो मुझे मुश्किलातें पेश आती थी और मैं नहीं चाहती थी कि मैं परेशान हूँ या घर वालों को करूँ, क्योंकि कहीं भी घर वाले जाते थे मैं उनके साथ नहीं जाती थी, क्योंकि मैं गाड़ी के अलावा कार के अलावा किसी चीज़ में बैठने में मुझे बहुत मसला होता था। सो इसलिए मैंने खुद को साइड पे कर दिया। ये वह सिलसिला चलता रहा। उसके बाद 2 साल मैंने डिप्रेशन में वक्त गुजारा। 2 साल मैंने सिर्फ एक घर में खुद को इतना आइसोलेट कर दिया, महदूद कर दिया कि जहाँ मेरे माँ बाप बहन भाई के अलावा कोई भी नहीं था। ऐसी ज़िंदगी मैंने गुजारी। सिर्फ एक ही घर में 2 साल गुजारेंगे अगर आप और कहीं भी बाहर ना जाएं, यहाँ तक कि अपने लिए कपड़े और चप्पल तक लेने ना जाएं, तो आप खुद भी समझ सकते हैं कि उस इंसान की ज़िंदगी कैसे हो जाती है। मैं भी डिप्रेशन का शिकार हो गई थी। और आप ये समझते हैं कि जब कोई डिप्रेशन का शिकार होता है तो उसको ज़्यादातर खुदकुशी के ख़्यालात आते हैं। मैं उन तमाम टाइम से, मुश्किल टाइम से गुज़री, लेकिन मेरा वालिदैन को देखती थी जो मुझे सपोर्ट करते थे और मैंने सोचा कि अगर मैं खुदकुशी करूँगी तो इनका तो मेरे अलावा बहन भाई दूसरे तो छोटे हैं, इनको कौन सपोर्ट करेगा। इनके ख्वाब थे और जो मुझे पूरे करने हैं। बहरहाल 2 साल इसी तकलीफ़ के साथ मैंने 2 साल गुजारे। 2 साल के बाद मुझे एक पेज नज़र आता है फेसबुक पे, एम्पावरमेंट PWDs एंड ILC। मैंने रब्ता किया, उनके के पास व्हाट्सअप का नंबर था, मैंने उनसे रब्ता किया तो उन्होंने मुझे गाड़ी भेजी। वो इदारा जो है वो जो पर्सनल विद डिसेबिलिटीज़ होती हैं उन पे काम करते हैं। मैं जब गई उनके पास तो वहाँ पे गाड़ी से उतरी, उन्होंने गाड़ी भी भेजी थी मेरे लिए। तो मैं जब उतरी तो वहाँ की अटेंडेंट मेरे लिए व्हील चेयर ले गई। मैंने उनको कहा कि नहीं, मैं व्हील चेयर पर नहीं बैठूँगी, क्योंकि अगर आप फिट होते हैं ना तो ना डिसेबल लोगों के लिए सोचते हैं। सो मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं होंगी, और ना ही मुझे उनके राइट्स का पता था या वो कैसी ज़िंदगी गुजारते हैं। तो मैंने भी नहीं सोचा था और मैं अपनी डिसेबिलिटी को एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से मुझे लगता था आज नहीं तो कल तक मैं शायद ठीक हो जाऊंगी। और ये सिलसिला यही चलता रहा। फिर मैंने सलाल मोहम्मद से बात की तो उन्होंने मेरी काउंसलिंग की, कंसल्टेंसी की, और उसके बाद उन्होंने मुझे कुछ ट्रेनिंग्स में भेजा। जब मैं ट्रेनिंग्स में गई तो वहाँ पे मैंने देखा कि लोग व्हीलचेयर पे बैठ के एक कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जहाँ पे बिजनेसमैन थे, फीमेल डॉक्टर्स थी, कुछ लेडीज़ पुलिस ऑफिसर थी। जब मैंने कहा कि ये एक कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो मैं क्यों नहीं गुजार सकती, क्योंकि कामयाब होने के लिए हाथों का होना लाजमी नहीं है, पाँव का होना लाजमी नहीं है, कामयाब होने के लिए अच्छे जहन का होना लाजमी है। ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच ज़रीना, आपने अपनी कहानी शेयर की। एंड जिनका इन्होंने नाम लिया है, आई वुड लाइक टू अपलॉड फॉर हिम एज वेल। ही इज़ द वन रनिंग हैंड्स ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग फॉर डिसेबल्ड वुमेन अक्रॉस पाकिस्तान। अ ह्यूज अपलॉड। उन्होंने मुझे व्हीलचेयर चलाना सिखाई और उन्होंने कहा कि आप एक कामयाब ज़िंदगी गुजार सकती हैं, एक दिन आएगा जब आप बात करेंगी लोग सुनेंगे। सो आज मैं बात कर रही हूँ, आप सब सुन रहे हो, उसके लिए मैं आप सबकी शुक्रगुजार हूँ, और स्पेशली सलाल मोहम्मद की जिन्होंने मुझे ट्रेन किया। हाँ, और अभी मैं अल्हम्दुलिल्लाह जॉब कर रही हूँ PWDs, ऐसी माजूर ख़वातीन जो घरों तक महदूद हैं उन पे काम कर रही हूँ। थैंक यू विस्मा, आपने हमें मौका दिया यहाँ पे आने का, ऐसा प्लेटफॉर्म दिया। थैंक यू सो मच।